Back to our channel for the physiology lecture 2. We were continuing for the chapter or the first unit of physiology, that is cell or human cell. So already in the lecture 1 we have discussed how homeostasis and cell organization is maintained in the body and how the regulation of nutrient intake, excretion, distribution, emission and regulation takes place. So this is the short diagram which summarizes those concepts which we have already discussed. So today we will start with cell. So as for the organization of cell, as you can see in the figure, we have certain structure within the cell. So microscopically, or when we see a cell within microscope, it has been divided into two parts or two components of a cell, that is, one is nucleus and the other one is cytoplasm or the fluid in which the organelles live. So the nucleus is separated by cytoplasm by a nuclear membrane. As here you can see, this membrane or this lining or covering of the nucleolus is nuclear membrane, which is separating the cytoplasmic fluid from the nucleus. On the other hand, cytoplasm separates from surrounding fluid by cell membrane, or which is also known as plasma membrane. So cytoplasm, as each cell have their intracellular fluid, and in external environment or outside the cell we have extracellular fluid, as we have already discussed in the last lecture. So here the two cells or the component of two cells is differentiated by this cell membrane, or the extracellular fluid is differentiated from these cell membrane from intracellular fluid. So the different substances that make up the cell are collectively known as protoplasm. So cell has two components, that is nucleus and cytoplasm, and the substances which collectively, or we can say the chemical substances which collectively compose our cell is known as protoplasm. And protoplasm consists of mainly 5 elements or substances, that is water, electrolytes, protein, lipid and carbohydrate, which we will discuss in further slides, as these components are important to understand the functioning as well as the structural organization of the cell. So first we have our water. So the principal fluid medium of the cell is water. As we already know that more than 60% of our body and cell even is consisting of water only. So present in most of the cell except fat cells. फैट सेल्स के अलावा सारे सेल्स में जो है हमारे फ्लूइड कंटेंट होता है, और वो भी 70 to 85% होता है, ऐसा हम मानते हैं. सो द मैनी सेलुलर केमिकल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर. एज वी ऑल नो, वाटर जो है एक हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं. और क्योंकि यहाँ पे सेल की बात हो रही है तो सेलुलर केमिकल्स जो है यहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं, ये बताया गया है. So others are suspended in the water as a solid particulates. और जो अदर सब्सटेंसेज जो कि सॉल्युबल नहीं हो पा रहे हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं वाटर में एज अ सॉलिड पार्टिकुलेट्स, यानी कि पार्टिकल के फॉर्म में वो वाटर में रह जाते हैं. देन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अमंग द डिजॉल्व केमिकल्स और एट द सरफेस ऑफ द सस्पेंडेड केमिकल्स और द मेम्ब्रेन. सो ये वाटर जो है क्या करता है कि वो जो डिजॉल्व केमिकल्स हैं उनके साथ अलग टाइप का रिएक्शन और उनके फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कुछ केमिकल्स जो डिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे, और कुछ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि उनके मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है. जैसे एक अगर हम एग्जांपल दें तो एक एपोलिपोप्रोटीन, तो वो पार्टिकल जो है वो फॉस्फोलिपिड के या जो लिपिड लेयर है हमारे सेल की उसके बीच में इंटैक्ट है, तो वो जो है डिफरेंट फंक्शन करता है एज़ कम्पेयर टू जो अंदर सेल्स होंगे या केमिकल्स होंगे उनके कंपैरिजन. तो वाटर एक मीडियम है फर्स्ट ऑफ ऑल, किस लिए? क्योंकि हमारा जो कंसनट्रेशन है पूरे सेल का 70 to 80% वाटर से बना है. सेकेंडली यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो केमिकल सब्सटेंसेस और सॉलिड पार्टिकुलेट्स दोनों को ही ये कंसिस्ट करता है, और दोनों ही फर्दर सेलुलर फंक्शनिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाई वाटर इज इम्पॉर्टेंट विद इन अ सेल. नेक्स्ट वी हैव आयंस. तो जैसा कि हम सबको पता है जो सेल की फंक्शनिंग होती है वो पर्टिकुलर एक
मिली वोल्ट या करंट में चलती है, और इवन जो इम्पल्सेस हमारे ट्रांसमिट होते हैं, जो भी सिग्नल्स हमारी बॉडी में चलते हैं, वो आयंस के बेसिस पे ही सिग्नल ट्रांसमिशन होता है. सो important ion in the cell includes potassium, magnesium, phosphate, sulfate, bicarbonate, and in smaller quantity we have sodium chloride and calcium. As we have already discussed the intercellular fluid and extracellular fluid, these are those ionic constituents of ICF and ECF only. So these ions provide inorganic chemicals, as here these all are in majorly these all are इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर सेलुलर रिएक्शन. सो जो ये सेलुलर कंपोनेंट्स है जो कि इनऑर्गेनिक है नेचर में, वो क्या करते हैं, हमको सेलुलर रिएक्शंस के लिए हेल्प करते हैं हमारे सेल को, एंड इज़ नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ सम ऑफ द सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म. और कुछ सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो हैं, मतलब फंक्शनिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्टिवेट करना, कुछ स्पेसिफिक टाइप के इम्पल्स को रिसीव करना, सिग्नल देना, ये सब के लिए जो है एक नेसेसरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न है उनके एक्शन का, जो ये आयंस हमें करने के लिए या हमारे सेल्स को हेल्प आउट करते हैं उस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए. So say for example, ions acting at the cell membrane are required for transmission of electrochemical impulses in nerve and muscle fiber. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स और मसल फाइबर दोनों ही जो है इम्पल्सेस के बेसिस पे काम करते हैं. तो यहाँ पे दोनों हमारी नर्व्स में दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी नर्व और मसल फाइबर दोनों के कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे हमारा नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है और हमारी मसल जो है वो एक्ट करती है. तो ये जो सिग्नलिंग होती है बेसिकली इसमें एक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आयंस के एक्शन से या आयंस के इंक्रीज या डिक्रीज या उनके मूवमेंट से, कि कैसे वो ECF में जा रहे हैं और कैसे ICF में कुछ आयंस आ रहे हैं, उनके मूवमेंट से ये एक्शन जो है वो इनिशिएट होता है या हमको मिलता है. तो इसीलिए आयंस जो है फंक्शनिंग या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ मैकेनिज्म यानी कि रेगुलेशन में भी काम आते हैं, और जो मेन फंक्शंस है सेल के, उस पर्टिकुलर सेल के, वो आयंस के मूवमेंट या उनके एक्शन के बेसिस पे ही होते हैं, ऐसा हम मानते हैं. नेक्स्ट वी हैव अवर प्रोटीन्स. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी जो है मेजरली सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट या न्यूट्रिएंट है वो प्रोटीन ही है. सो आफ्टर वाटर तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे सेल का, यानी कि 10 to 20% वो हमारे प्रोटीन से बना हुआ है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन विद इन अ सेल, दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा फंक्शनल प्रोटीन जो कि डिफरेंट फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है. तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द सेल मेनली in the form of long filaments that are polymers of many individual protein molecules. तो हमारे सेल के स्ट्रक्चर में जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है वो फिलामेंट यानी कि धागों की तरह, लंबे लंबे धागे या पॉलीमर्स की तरह जो है उस फॉर्म में मौजूद हैं. तो अ प्रोमिनेंट यूज ऑफ सच इंट्रासेल्युलर फिलामेंट्स इज़ टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो जो हमारा स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स है हमारे सेल का, वो इसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बना होता है, और ये जो डिफरेंट ट्यूब्यूल्स हैं वो मिलके हमको साइटोस्केलेटन देते हैं. जो सेल का साइटोस्केलेटन है वो ये मिलके बनाते हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ही बनाते हैं. इसके अलावा ये जो साइटोस्केलेटन है वो फर्दर अगर हम ग्रॉस एनाटॉमी या सरफेस एनाटॉमी के कंसेप्ट में समझें तो सीलिया यानी कि बॉडी हेयर्स, नर्व एक्सॉन्स यानी कि जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन्स है वो, और टैंगल फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स जो होंगे न्यूप्लाज्म के और साइटोप्लाज्म के, उन सबको यही स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो बनाते हैं. सेकेंड वी हैव एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन जो कि फिब्रिलरी प्रोटीन्स आर फाउंड स्पेशली इन कोलाजन, इलास्टिन फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट एंड सो फोर्थ. तो ये तो था सेलुलर लेवल पे इन सेल के अंदर कौन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तब सेल के बाहर जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, वो है हमारे इलास्टिन, कोलाजन जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में है यानी कि ब्लड वेसल्स में है, साथ ही साथ टेंडन्स और लिगामेंट्स को भी ये सपोर्ट करते हैं या बनाते हैं. नेक्स्ट वी हैव अवर फंक्शनल प्रोटीन्स. तो फंक्शनल प्रोटीन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है
एज कम्पेयर टू आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन के, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स इन ट्यूबुलर ग्लोब्यूलर फॉर्म, यानी कि ट्यूब एज वेल एज ग्लोब्यूल, यानी कि सर्कल। ग्लोब्यूल मतलब होता है बेसिकली फैट लाइक या एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो ग्लोब्यूलिन जैसा हम देखते हैं। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दोनों ही मिल के जो कॉम्बिनेशन से बनाते हैं वैसा हमारे फंक्शनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, दीज प्रोटीन्स आर मेनली एंजाइम्स ऑफ द सेल एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द फिब्रिलरी प्रोटीन्स ऑफन मोबाइल इन सेल फ्लूइड। तो जैसा कि हमने जस्ट अभी देखा कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है हमारे एक पोजीशन पे ही रहते हैं या वो कॉन्स्टिट्यूएंट करके या मिल करके कोई एक स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फंक्शनल प्रोटीन जो है वो फ्रीली मूवेबल है, यानी कि वो सेल फ्लूइड में मूव कर सकते हैं। दूसरा, जो मेजर एंजाइम्स होते हैं हमारे सेल के वो फंक्शनल प्रोटीन से बने होते हैं। ऑल्सो मैनी ऑफ देम आर एडहेरेंट टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो ऐसे भी है जो मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं, एडहेरेंट होते हैं सेल के अंदर ही। कुछ जो है वो मूवेबल होते हैं, कुछ एडहेरेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर सब्सटेंसेज इन द सेल फ्लूइड एंड देयर बाय कैटालाइजेस स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शन। तो ये जो फंक्शनल प्रोटीन है ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। कैटालिसिस या कैटलिस्ट वो होता है जो कोई भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, या बोलना चाहिए जो रिएक्शन के रेट को रेगुलेट करे वो हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एंजाइम सेल के अंदर है ये फंक्शनल प्रोटीन से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, the chemical reaction that split glucose into its component parts and then combined these with oxygen to form carbon dioxide and water while simultaneously providing energy for cellular function are all catalyzed by a series of protein enzyme। तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और फर्दर जो उसका प्रोडक्ट बचता है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, वेस्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो निकल जाता है, ठीक है। फर्दर उसको एटीपी यानी कि एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो कन्वर्जन का रिएक्शन है, किसी भी टाइप का कन्वर्जन या एक्टिवेशन जो भी हमारे सेल में होता है, तो ये इसी टाइप के एंजाइम से कैटालाइज यानी कि रेगुलेट किया जाता है और वो एंजाइम जो है आपके फंक्शनल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। देन वी हैव लिपिड्स। तो लिपिड्स अनदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे प्रोटोप्लाज्म का। तो लिपिड आर सेवरल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट। ऐसे सब्सटेंसेज जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, जब वो एक बंच बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, तब वो हम उनको लिपिड्स कहते हैं। स्पेशली मोर इम्पॉर्टेंट इज लिपिड्स आर phospholipids and cholesterol which together constitutes or made up our 2% of the total cell mass। तो हमने देखा कि 70 to 85% आपका हमारा वाटर है, देन 10 to 20% हमारे प्रोटीन्स, और जो बचा हुआ 2% है वो आपका लिपिड्स है। उसमें भी दो लिपिड सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का क्या सिग्निफिकेंस है? दे आर मेनली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड देयरफॉर दे आर यूज्ड टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है इसीलिए इनकी सेल मेम्ब्रेन बनाई जाती है ताकि हमारा सेल जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल हो सके और एक बैरियर का काम कर सके। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल सम सेल कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल फैट। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के अलावा कुछ सेल्स हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैट सेल्स ही अगर मैं बोलूँ तो उनमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो कि न्यूट्रल फैट होते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड फर्दर फैट सेल्स के 95% सेल मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर जब हमें न्यूट्रिएंट की नीड होती है तब यही ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन होके डिजॉल्व होके हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। Further, we have carbohydrates, which is the last and the important constituent of the protoplasm. So, have little structural function in cell except the part of glycoprotein. इनका बहुत ज़्यादा कुछ structural contribution नहीं है except glycoprotein molecules जो कि हमारे cell का major constituent है।
but they play major role in nutrition of the cell. Structural रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्बोहाइड्रेट्स की कम है एज कम्पेयर टू न्यूट्रिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्स डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द अमाउंट यूजुअली एवरेजेस अबाउट 1% ऑफ द टोटल मास. सो जो हमारे ज़्यादातर सेल हैं वो एज सच बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है कार्बोहाइड्रेट का वो रखते नहीं हैं. वो अप्रॉक्सीमेटली 1% जो होगा टोटल मास का सेल के, उतना ही कार्बोहाइड्रेट वो रखते होंगे, एक्सेप्ट और या फिर उनको इंक्रीज कर दिया जाता है जब, बट इंक्रीजेस टू एज मच एज 3% इन मसल्स एंड ओकेजनली 6% इन लीवर. तो फंक्शनिंग के बेसिस पे या कुछ स्पेशल पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ये जो है वो वेरी कर सकते हैं. अदरवाइज सेल में 1% जो टोटल मास होगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा. उससे ज़्यादा स्टोरेज हमारे सेल के पास कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है. However, carbohydrate in the form of dissolved glucose is always present in the surrounding extracellular fluid so that it is readily available to the cell. हालांकि सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 1% है, बट जो उसका ECF है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें जो है ग्लूकोज को हम डिज़ोल्व करके अवेलेबल रखते हैं अपने सेल के लिए कि जब भी उनको ज़रूरत हो वो तुरंत अपटेक करें और अपनी फंक्शनिंग को कंप्लीट कर सकें. ऑल्सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और साथ ही कुछ अमाउंट जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो कि इनसॉल्यूबल पॉलीमर है या बंच ऑफ ग्लूकोज है. फर्दर जो जब हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये पॉलीमर या ये बंच जो है वो खुलता है और हमको एनर्जी सप्लाई करता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोटोप्लाज्म और द मेन constituents of the cell as we have discussed here. Now we have to discuss the physical structure of the cell, that is nucleus and cytoplasm primarily. So how a cell or human cell looks like? तो सेल इज़ नॉट मियरली अ बैग ऑफ फ्लूइड एंजाइम्स और केमिकल्स. सो सेल सिर्फ एक बैग नहीं है जिसमें आपका वाटर, एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं, बल्कि हाईली ऑर्गेनाइज फिजिकल स्ट्रक्चर जिनको हम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स भी कहते हैं वो इन सेल में प्रेजेंस होते हैं. द फिजिकल नेचर ऑफ ईच ऑर्गेनल्स इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द सेल्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर सेल फंक्शनिंग. तो जैसा कि हमने इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में डिस्कस किया जो कि स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इम्पॉर्टेंट है, सेम लाइक जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल के अंदर वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट वन ऑफ द ऑर्गेनल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, more than 95% of the cell's energy release from nutrient without ceasing immediately. यानी कि अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो हमारी सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी. तो दिस वॉज अ बेसिक एग्जाम्पल कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनल्स भी हैं. तो यहाँ पे हम एक सेल के डायग्राम का ओवरव्यू ले लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेंट्रियोल्स हियर, group of tubules, then secretory granules which we will discuss further, microtubules, nuclear membrane which is differentiating cytoplasm from nucleus, then we have mitochondria, granular endoplasmic reticulum or we can say rough endoplasmic reticulum which consists of ribosomes, then smooth or agranular endoplasmic reticulum which do not consist ribosomes, then microfilaments, lysosome or suicidal bag, ribosomes helps in protein functioning or synthesis, then glycogen as we have already discussed the constituent, small amount of energy in the form of glycogen is stored within the cell. Then we have our nucleolus or the controller of the cell, then we have cell membrane which differentiates cell from the extracellular fluid and Golgi apparatus which we will see each in detail in further slides. Now first of all our cell is a membranous structure as we have already discussed that. So the most of the organelles of the cell are covered by membrane too, and these membranes are primarily composed of lipids or proteins. So these membrane includes, so each of the cell membrane includes cell membrane,
nuclear membrane, membrane of endoplasmic reticulum, membrane of mitochondria, lysosome and Golgi apparatus. These all structure consist of membrane, means they have an additional membrane to differentiate their internal environment from the external environment of the cell or the ECF fluid. So why we need a lipid layer? Because lipid is not water soluble, it is fat soluble, so it acts as a barrier which impedes or which obstructs the movement of water and water soluble substances from one cell compartment to another. बिकॉज वाटर इज़ नॉट सॉल्यूबल इन लिपिड्स, एज सिंपल एज दैट कि हमारा जो लिपिड या हमारा फैट जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता है और जो वाटर सॉल्यूबल या वाटर को जो है वो हमारे सेल के अंदर या बाहर आने नहीं देता है. Then we have protein molecules in the membrane often do penetrate all the way through the membrane because हमारी सेल की फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई भी ज़रूरी है. तो अगर ये लिपिड लेयर रहेगी और वो सिर्फ फैट सोल्यूबल चीज़ों को ही जाने देगी तो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे जाएंगे? तो उनके मैकेनिज्म के लिए एक स्पेशलाइज्ड पाथवेज बनाए गए हैं, पोर्स बनाए गए हैं और पैसेज तैयार किए गए हैं, चाहे वो कैरियर प्रोटीन से जाएं, चाहे वो पोर्स के थ्रू जाएं, चाहे वो किसी और पाथवे के थ्रू जाएं. So also many other membrane proteins are enzyme that catalyzes a multitude of different chemical reactions. So इसके अलावा क्योंकि हमारे प्रोटीन्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उनको जो है डिफरेंट मैकेनिज्म से भेजना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर उनका थोड़ा सा भी डिसबैलेंस या डिसरेगुलेशन होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं. सो दिस इज़ वाई वी हैव membrane bounded organelle, that is cell membrane, nuclear membrane, membrane of endoplasmic reticulum, mitochondria, lysosome and Golgi apparatus. and क्यों हमारे lipid layer ही important है और क्यों प्रोटीन के लिए इनको ये नहीं बनाया गया है, इन सब का एग्जाम्पल या अंडरस्टैंडिंग हमने देख ली. नेक्स्ट वी हैव अवर सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन which envelops a cell or covers a cell and is a thin, pliable, elastic-like structure, which is thick, that is 7.5 to 10 nanometer, and is composed entirely of proteins and lipids, and a small ratio of it is composed of carbohydrate. So 55% of protein, 40%, or we can say in some books it is 40, in some books it is 42. So as per Guyton and Hall 11th edition it is 42%, which constitute phospholipid 25%, 13% of cholesterol and up to 4% of other lipids. In some books it is 40%, and our remaining 5 or 3% of carbohydrate, these constitutes or make up your cell membrane. Structurally, you can see what a cell membrane actually look like. So we can say like it's an sandwich-like structure. In between that, we have a hydrophilic or hydrophobic layers, which is known as lipid bilayer. One side is hydrophilic, one side is hydrophobic. Means water soluble and fat soluble lipids are there. So this together is known as lipid bilayer. Means two layers. Then we have certain peripheral proteins for various chemical actions and regulations. And inside we have our cytoplasm, outside we have our extracellular fluid, and inside we have our integral protein. Peripheral and integral, two types of protein we have, which we will see further. And in ECF we have our integral protein too, because they are connecting ECF to ICF. And further carbohydrate, which is also an important constituent of our cell. So how this lipid barrier of the cell membrane acts actually, or what are the features of this lipid layer is. So as you can see, it is a basic, one second, okay, so its basic structure is lipid bilayer. So as we have already seen that our cell membrane is mainly consist of lipid bilayer.
or it is a thin double layer film of lipid. Each layer has one molecule thick that is or that continues over the entire cell, as you can see here. Then interspears or interspace in this liquid or lipid film are large globular protein molecules. Here, like integral protein, peripheral protein, we have large integral protein molecules. One each end of the phospholipid molecules is soluble in water, that is hydrophilic. One side of this molecule is hydrophilic and other is hydrophobic or non-water soluble, or other end is soluble only in fat, that is hydrophobic. And the phosphate end of the phospholipid is hydrophilic, means the phosphate end is hydrophilic and the fatty portion is hydrophobic, as understood. means जो phospholipid वाला एरिया होगा वो वाटर सोल्यूबल होगा और जो फैटी एसिड वाला होगा वो फैट सोल्यूबल होगा. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. Then because of the hydrophobic portion of the phospholipid molecules, these water are repelled or water molecules are repelled but are mutually attracted on the other hand, which have natural tendency to attract each other in the middle of the membrane. So it is saying like इनका कहने का मतलब ये है कि एक लेयर जो होगी वो वाटर को रिपेल करेगी, एक अट्रैक्ट करेगी. तो इन दोनों के बीच जो है एक माइल्ड अट्रैक्शन जनरेटेड होगा. जैसे अगर हम कहें कि दो मैग्नेट को जब हम थोड़ा सा दूरी पे रखते हैं तो उनके बीच जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हम फील कर सकते हैं, या बोलना चाहिए उन दोनों में आपस में खिंचाव होता है. सेम लाइक सेल का स्ट्रक्चर भी ऐसे लिपिड बायलेयर से बाउंडेड है. देन द हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट पोर्शन देन कॉन्स्टिट्यूट टू सरफेसेस. अब जो हाइड्रोफिलिक या वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट साइड है जो लिपिड बायलेयर का, उसमें अगेन दो सरफेसेस होते हैं. इन कॉन्टैक्ट विद इंट्रासेलुलर वाटर on the inside of the cell membrane and extracellular water on the outside the cell membrane. तो एक जो होगा वो ICF की तरफ होगा, एक जो होगा वो ECF की तरफ होगा. दैट इज ऑब्वियस, दो फेसेस होंगे. देन दिस लिपिड लेयर in the middle of the membrane is impermeable to usual water soluble substances. इसके अलावा ये भी जो लिपिड लेयर है हमारी, ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही देखा था वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है. तो कुछ वाटर सेलुलर सब्सटेंसेस जैसे कि आयरन, ग्लूकोज या यूरिया वगैरह के लिए ये इम्परमिएबल होगी, यानी कि उनको एंटर नहीं करने देगी सेल में. देन कन्वर्सली फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये सब जो हैं यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, ये तीनों ही जो है बिल्कुल आराम से मेम्ब्रेन को जो है पेनिट्रेट कर जाएंगे या मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज हमारी मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी है. तो लिपिड सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल चीज़ों का ट्रांसमिशन जो है वो ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल. देन द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन आर ऑल्सो लिपिड. तो जैसा कि हमने देखा फॉस्फोलिपिड, तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा वो फॉस्फोलिपिड लेयर का था. अब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो कि हमारे मेम्ब्रेन में हैं वो भी कैसे होंगे, हाईली परमिएबल होंगे. सेकेंडली बिकॉज देयर स्टेरॉयड न्यूक्लियस इज हाईली फैट सोल्यूबल, और जो हमारा न्यूक्लियस है जो कि हाईली फैट सोल्यूबल है वो भी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. देन दीज मॉलिक्यूल्स और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड इन बायलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन. ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल आराम से हमारी मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो सकती है, बिकॉज हमारी लेयर जो है वो लिपिड की ही बनी हुई है. दे मेनली हेल्प टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी ऑफ द बायलेयर टू वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड. अब ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि परमिएबिलिटी को रेगुलेट करते हैं कि कितने डिग्री तक हमको परमिएबिलिटी देनी है या नहीं देनी. जहाँ हमको फैट की ज़रूरत होगी वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और उसको टाइटली रेगुलेटेड बना देंगे. देन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स मच ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एज वेल. ऑब्वियस है कि जब वो रेगुलेट करेंगे कि कितनी परमिएबिलिटी होनी चाहिए कितनी नहीं, तो क्या होगा, फ्लूइडिटी को भी वो मेंटेन करेंगे सेल के अंदर की. तो सिंपल से एग्जांपल से अगर इसको समझाया जाए तो ऐसा होता है कि सपोज़ मान लीजिए कि कोई चीज़ को से एक पेज है,
ठीक है, सिंपल सा पेज है। अगर मैं उसको पानी में डालूँ तो वो पेज क्या होगा, घुल जाएगा। अगर वही मैं उसको घी में डालूँ या किसी ऑयल में डालूँ तो क्या होगा, वो ना घुलेगा बल्कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको पन्ने या जो पेज है उसको अंदर इफ़ेक्ट नहीं होने देगा। सेम लाइक आप सेल को ले सकते हैं या सेल की लेयर को ले सकते हैं कि जो लिपिड है या जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करेगा, जब सेल को ज़रूरत है परमिएबिलिटी की तो ये मॉलिक्यूल्स जैसे ही रहेंगे या ट्रांसपोर्टर का काम करेंगे, और जब सेल को ज़रूरत है टाइटली रेगुलेशन की या किसी को अंदर नहीं आने देना है, तब ये डिज़ोल्व होके उसको कॉन्शियस यानी कि इंटैक्ट बनाएंगे और उनको इम्परमिएबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। Then we have in diagram already we have seen integral protein and peripheral protein. So what are they? So now we will discuss, as in figure we have seen that and this figure also we can see like globular masses floating in the lipid layer. Basically these are membranous protein. So we have membranous protein, most of which are glycoprotein or which are made up of glycoprotein. There are two main types of cell membrane protein, that is integral protein and peripheral protein, as we have already seen in the figure. So what are peripheral protein? Peripheral protein are the one which attach only to the one surface of the membrane and do not penetrate or permeate all the way through. तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन को, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर नहीं निकल रहे हैं या ये पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं पूरे सेल को, ठीक है। या यहाँ इस डायग्राम में आप जो है वो देख पा रहे हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन वो है, जस्ट अपोजिट मैंने बता दिया, सॉरी फॉर दैट, कि इंटीग्रल प्रोटीन वो है जो वन साइड से दूसरे साइड यानी कि दोनों साइड पे आपके होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये येलो पोर्शन ये पूरे सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है, और यहाँ पे भी ये पूरे सेल मेम्ब्रेन को एज वेल एज बाहर भी सिग्नलिंग का काम ये कर पाएगा, यानी कि अंदर और बाहर दोनों को ये कम्युनिकेट कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो पेरिफेरल प्रोटीन होगा वो किसी एक साइड ही होगा, जैसे कि यहाँ पे पेरिफेरल एक प्रोटीन है जो कि ECF की तरफ है और एक ICF की तरफ है, तो ये दोनों जो है वो अलग अलग फंक्शन करेंगे। तो हमारे दो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो कि एक होता है इंटीग्रल जो कि पूरे सेल मेम्ब्रेन अंदर और बाहर दोनों को कम्युनिकेट करेगा, और दूसरा होता है पेरिफेरल जो कि एक पेरिफेरी में ही होगा, यानी कि एक साइड ही होगा। So many of these kind of integral protein provide structural channels और प्रोट्स, और यही प्रोटीन क्या करते हैं, हमको चैनल यानी कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, जो कि हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि कैसे ये ओपन होते हैं या कैसे ये कैरियर का काम करते हैं। स्पेशली आयंस विच कैन डिफ्यूज़ बिटवीन द एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड, और स्पेशली आयंस के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको जो है ECF और ICF के बीच में मूवमेंट कराना और करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन की मदद से ही जो है वो कंप्लीट हो पाता है। अगेन दीज प्रोटीन चैनल ऑल्सो हैव सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, तो इन प्रोटीन्स की भी जो है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, यानी कि इनके पास भी जो है रेगुलेशन है कि सबको सेल के अंदर या बाहर लाना ले जाना नहीं करना है। ओनली फॉर दोज जिन मेहमान, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें मेहमानों का, तो जिन मेहमानों को हम अपनी पार्टी में बुलाते हैं सिर्फ वही आते हैं, तो सेम लाइक जिनका सिग्नल आएगा उन्हीं को ये प्रोटीन जो है वो अंदर भेजेंगे, अदरवाइज ये प्रोटीन जो है कैरियर का काम नहीं करेंगे, परमिएबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। देन अदर इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज दैट अदरवाइज कुड नॉट पेनिट्रेट लिपिड बाइलेयर। तो जैसा कि हमने देखा कि ये ट्रांसपोर्टर का काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि कुछ चीज़ों को हम ऐसे ही सेल में परमिएबिलिटी को एक्टिवेट करके या ऑन करके अंदर ले जा सकते हैं। बट कुछ चीज़ें जैसे कि जो बड़ी हैं साइज़ में, जैसे कि प्रोटीन, उनको हम डिफ्यूजन या परमिएबिलिटी के बेसिस पे भी नहीं ले जा सकते, तो उनके लिए हमको कैरियर की ज़रूरत होती है। तो यही इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो कैरियर का काम करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से या किसी और फैसिलिटेशन यानी कि किसी और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की मदद से जो है कैरियर का यानी कि ट्रांसपोर्ट का एक्शन जो है वो पूरा करवा पाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा ये कैरियर प्रोटीन्स के अलावा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि प्रोटीन जो हैं हमारे वो बेसिकली एनर्जी खर्च करा के तभी काम कर पाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, तो उनका सिर्फ इम्पल्स बेसिस एक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और यही इंटीग्रल प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं सर्टेन कंडीशंस में। देन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑल्सो सर्व एज अ रिसेप्टर, और एंजाइम कैरियर प्रोटीन के अलावा ये रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं, स्पेशली फॉर पेप्टाइड और प्रोटीन बेस्ड हॉर्मोन्स विच डू नॉट ईजिली पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन, जो कि ईजिली हमारे सेल मेम्ब्रेन को जो है पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उनके लिए ये रिसेप्टर का काम करते हैं। देन इंटरेक्शन ऑफ द cell membrane receptor with specific ligand binds to the receptor and conformational changes occur in the receptor protein। तो अब ये रिसेप्टर का काम कैसे करते हैं कि एक ये ligand के साथ या मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं और फिर उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, और जब भी रिसेप्टर और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी तब हमेशा जो है चेंजेस आते हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिनको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस, आते हैं रिसेप्टर प्रोटीन में। और ये कन्फर्मेशन चेंजेस क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन करते हैं और इंड्यूस कराते हैं रिसेप्टर और उसके प्रोटीन यानी कि जो साइटोप्लाज्म में है उसको मैसेज देके वो सिग्नल को कंप्लीट कराते हैं और वो मॉलिक्यूल को अंदर भेज देते हैं एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। इन दिस वे इंटीग्रल प्रोटीन स्पैनिंग द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट टू द सेल इंटीरियर। और ये रिसेप्टर सिग्नलिंग या सेकेंड मैसेंजर की तरह ये क्या करते हैं, सिग्नलिंग का भी काम करने में हेल्प करते हैं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसके अलावा जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं हमारे, जो कि सिर्फ एक साइड होते हैं सेल के, या तो ECF के साइड या तो ICF के साइड, तो ये क्या करते हैं, ऑलमोस्ट एंटायरली एज एंजाइम और कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द मेम्ब्रेनस पोर्स, यानी कि जो हमारे मेम्ब्रेन में पोर्स हैं उसको उससे क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है ECF और ICF के बिटवीन, वो देखना, एंजाइम की तरह काम करना और ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन करना, इनका सिर्फ इतना ही एक्शन होता है। वहीं हमारा इंटीग्रल प्रोटीन एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, रिसेप्टर की तरह, इसके अलावा कैरियर प्रोटीन की तरह और एंजाइम की तरह, इन सारी चीज़ों की तरह जो है वो एक्ट करता है। देन वी हैव अवर मेम्ब्रेन और कार्बोहाइड्रेट। तो दिस वाज अभी तक जो हमने पढ़ा वो सेल मेम्ब्रेन था और वो फॉस्फोलिपिड या लिपिड बाइलेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे। देन वी हैव स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे सेल का ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है। तो अगर आप देखेंगे अभी हमने पढ़ा लिपिड बाइलेयर के बारे में, अब हम पढ़ रहे साइटो और ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का कॉन्स्टिट्यूएंट है या स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है सेल को, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो हियर मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट अक्कर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन और लिपिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। तो हमारे जो मेम्ब्रेनस कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या स्ट्रक्चरल फंक्शन या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं दे सकते, या तो वो प्रोटीन के साथ मिलके देंगे या तो वो लिपिड के साथ मिलके देंगे। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो भी हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स थे जो कि हमारे सेल के टू एंड फ्रो साइड दोनों साइड इन्वॉल्व थे, या ECF और ICF के दोनों साइड इन्वॉल्व थे, वो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बने रहते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो 1/10 है उनमें से 1/10 जो है वो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलके बने होते हैं। सो द ग्लाइको पोर्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, चाहे वो ग्लाइकोलिपिड हो चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन हो, वो इनवेरिएबली प्रोट्यूड फ्रॉम और प्रोट्यूड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल डैंगलिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेल सरफेस। तो जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सेल के बाहर जो है अलग से प्रोट्रूड हो रहे हैं सेल सरफेस पे। और हमने जैसे प्रीवियस डायग्राम भी देखा था, यहाँ पे भी अगर आप देखें इंटीग्रल प्रोटीन है और इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है,
जो कि अलग से जो है वो बाहर निकल रहा है ताकि वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सके और सिग्नलिंग का काम कंप्लीट कर सके। देन मैनी अदर कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकेंस। एक होता है हमारे सेल में ग्लाइकोकैलिक्स और एक होता है हमारे सेल में प्रोटियोग्लाइकेंस। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि प्रोटीन के पोर्स यानी कि स्ट्रक्चर से और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है, और ये जो है लूजली अटैच होता है आउटर सरफेस ऑफ द सेल एज वेल। और ये जो है आपके आउटर सेल सरफेस में जो है लूजली अटैच होता है। ये पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यही आपका प्रोटियोग्लाइकेंस है। Thus, the entire outside surface of the cell often has a loose carbohydrate coat of glycocalyx. तो यहाँ पे ये जो पूरा लूज कोट है इसको टुगेदर या एक कॉन्स्टिट्यूएंट समझ के हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसमें आपका ग्लाइकोलिपिड भी आ जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी आ जाता है, और जो लूज आपका प्रोटियोग्लाइकेंस यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। ये ऑल टुगेदर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाते हैं। Then the carbohydrate moieties attach to the outer surface of the cell and have several important function. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट moieties जो बाहर हैं हमारे सेल के किसी तरीके से अटैच है लूजली, जो वो क्या फंक्शन करते हैं? So many of them have negative electrical charge which gives most of the cell an overall negative surface that repels the negative objects. So सबसे पहला negative electrical charge है उनके पास जो कि उनको नेगेटिव चीज़ों को या नेगेटिव आयंस को जो है वो रिपेल करने में हेल्प करती है। सेकेंडली, द ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ सम सेल अटैचेस टू ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ द अदर, दस अटैचिंग वन सेल टू अनदर। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का सेक्शन है हमारा, ये क्या करेंगे? एक तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स कॉम्बिनेशन बना के दो सेल को अटैच भी करके रख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के भी काम देगा या दो सेल्स को जोड़ने का भी काम करेगा। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज मेनी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज रिसेप्टर सब्सटेंसेज फॉर बाइंडिंग हॉर्मोन्स। तो जो रिसेप्टर की तरह काम करने का जो एक्शन होगा वो यही कार्बोहाइड्रेट मोइटीज करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन when bound to these combination activates and attach the integral protein that in turns activate the cascade of intracellular enzymes and further the glucose uptake or permeability is changed so that glucose uptake can result. So यहाँ पे क्या बता रहा है कि रिसेप्टर की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हमारे इंसुलिन का। तो क्या होगा कि इंसुलिन जैसे ही आके इन रिसेप्टर या कार्बोहाइड्रेट मोइटीज से अटैच होगा वो कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा ताकि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आ सके और फर्दर उनका जो मेटाबॉलिज्म है या कैस्केड है या एनर्जी ट्रांसपोर्ट का, अपटेक का और उनका मेटाबॉलिज्म वो कंप्लीट हो सके। एंड अदर और जो थोड़े मोड़े ये कार्बोहाइड्रेट मोइटीज है वो कहीं ना कहीं इम्यून रिएक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कैसे। नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल। तो अभी तक हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किससे बनी होती है, कैसे बनी होती है और उनके बेसिक फंक्शनिंग क्या है। तो यहाँ पे अब हम देखने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द filled with or is a structure filled with both minute and large dispersed particle and organelles। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा साइटोप्लाज्म है और आई गेस एक और डायग्राम है जहाँ पे आप और इजीली देख पाएंगे। इस जगह तो आपका ग्लाइकोकैलिक्स लिपिड बाइलेयर और उसके नीचे जो ICF में आएगा वो आपका साइटोप्लाज्म होगा एरिया। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि फिल्ड है बोथ माइन्यूट एंड लार्ज डिस्पर्स पार्टिकल एंड ऑर्गेनल। पार्टिकल्स के साथ साथ जो हमने देखा था कि कुछ सॉल्यूबल होते हैं, कुछ डिस्पर्स हो जाते हैं, उन पार्टिकल्स और ऑर्गेनल्स को जिस फ्लूइड में रखा जाता है और वो फ्लूइड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या बैग है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। So the clear fluid portion of the cytoplasm in which the particles are dispersed is called cytosol। और जिस फ्लूइड में साइटोसॉल या हमारे पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं या पार्टिकल्स रहते हैं, बेसिकली प्रोटीन हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, ग्लूकोज हो,
उसको हम कहते हैं हमारा साइटोसॉल। तो जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये जो लिक्विड है ये आपका साइटोसॉल है। देन डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म आर न्यूट्रल फैट ग्लोब्यूल्स, glycogen granules, ribosomes, secretory vesicles, and essentially or especially 5 highly organized organelles। तो हमारे इस डिस्पर्स साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा? फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट होंगे, राइबोसोम्स होंगे, सिक्रीटरी वेसिकल्स होंगे और हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज होंगे जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड परऑक्सीसोम्स। सो फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक ट्यूबुलर फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर है हमारे साइटोप्लाज्म का, और ये ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है एक साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है ये सारे इंटरकनेक्टेड है। दो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इर्रेगुलर है, ट्यूब लाइक और फ्लैट भी है। इधर ऊपर से अगर हम देखें सुपरफिशियली फ्लैट, और साइड व्यू से अगर हम देखें तो ट्यूबुलर। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड ट्यूबुलर फैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर, और ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ऑल्सो देयर वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन एंड दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन। और इसी के साथ इनकी जो कोटिंग है वो भी बाइलेयर से हुई है, हमारे लिपिड बाइलेयर से, और ये सेल मेम्ब्रेन की तरह ही स्ट्रक्चरल और फंक्शन शो करता है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर वेरी इन डिफरेंट सेल्स। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका सरफेस एरिया और स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है कि वो किस ऑर्गन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। फॉर एग्जांपल जो लीवर के हमारे सेल्स होंगे उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो 30 to 40 टाइम्स जो है वो ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन का एरिया कवर करेगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का 30 to 40% आपका सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा हमारे लीवर सेल्स यानी कि हेपाटोसाइट्स में। वहीं दूसरी तरफ द स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इज फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, a watery medium that is different from the fluid in cytosol outside the endoplasmic reticulum। और इसके साथ ही जो हमारे ये स्ट्रक्चर है उनमें जो है मैट्रिक्स, एक वाटरी फ्लूइड भरा होगा जो कि आपके साइटोसॉल के फ्लूइड से बिल्कुल डिफरेंट होगा, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। देन हम स्ट्रक्चर में ये भी देख रहे हैं कि एक ग्रैनुलर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि राइबोसोम्स नहीं है, और दूसरा ग्रैनुलर यानी कि जिसमें राइबोसोम्स हैं। तो इनके बारे में अब हम और आगे पढ़ेंगे। तो सब्सटेंस फॉर्म्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द सेल एंटर द स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर कंडक्टेड टू अदर पार्ट सच एज गोल्गी। तो क्या होता है कि कुछ पार्ट में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एनर्जी बनाई जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम्स है तो एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है, और फिर इनको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के थ्रू फर्दर इनको गोल्गी से अटैच होके ये ट्रांसमिट करते हैं हमारे स्टोरेज को, या जो भी हम स्टोर करते हैं बनाते हैं, सिंथेसिस होता है जिन प्रोटीन्स का, उनको ये ट्रांसफ़र करते हैं गोल्गी से। So also the vast structure area of these reticulum and multiple enzyme system attached to its membrane, providing a machinery for a major share of metabolic function of the cell। तो ये जो मशीनरी है इनकी, ये क्या कर रही है, दोनों मिलके ये हमारे सेल के इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग को यानी कि मेटाबॉलिक डिमांड और रेगुलेशन को पूरा कर रही है। कि क्या होगा, इनिशियली आपके राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स को बनाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक में बन रहा है क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स है, ये फर्दर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में आएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो गोल्गी के एंड पे अटैच होता है, और सारा जितना प्रोटीन्स बनाया है वो स्टोरेज के लिए गोल्गी को दे दिया जाता है। तो इसीलिए इनको मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। देन जैसा कि हम सबको पता है 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और हमने यहाँ पे देख लिए ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। तो जो राइबोसोम्स जिसमें कंटेन होंगे वो हमारे ग्रैनुलर होंगे, और जिनमें राइबोसोम्स नहीं होंगे
वो हमारे ए ग्रैनुलर या स्मूथ होंगे। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स विच फंक्शंस टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स इन द मॉलिक्यूल इन द सेल। तो हमारे राइबोसोम्स RNA और कुछ प्रोटीन से मिलके बने हैं। अब ये मिक्सचर ऑफ RNA और प्रोटीन क्या करते हैं, जो जो न्यू प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिस टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उनका प्रोडक्शन करते हैं और फर्दर ट्रांसमिट यानी कि भेज देते हैं दूसरे सेल के स्ट्रक्चर यानी कि गोल्गी को। तो जिन स्ट्रक्चर या एंडोप्लाज्मिक सरफेसेस पे लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ग्रैनुलर पार्टिकल्स यानी कि राइबोसोम्स होंगे, उनको हम रफ या फिर ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जिनमें ये राइबोसोम्स नहीं होंगे उनको ए ग्रैनुलर बोलेंगे। तो ये जो ए ग्रैनुलर रेटिकुलम है ये फंक्शन करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड सब्सटेंसेस फॉर अदर प्रोसेसेस ऑफ द सेल टू प्रमोट इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम्स। तो इंट्रा रेटिकुलर जो एंजाइम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कुछ लिपिड सब्सटेंसेस बनाता है। रफ तो आपका प्रोटीन बनाएगा, ये लिपिड बनाएगा ताकि सर्टेन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को भी कैरी आउट किया जा सके। देन वी हैव अवर गोल्गी अपैरेटस। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक वेसाइकल यानी कि क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डिवाइड हो जाता है यानी कि उसका एक तरीके से बडिंग जैसे होती है हमारी, एक टुकड़ा निकल के अलग हो जाता है, वैसे ही वो पूरा स्टोरेज दे करके अलग हो जाते हैं। और ये जो वेसाइकल है ये जाके गोल्गी से जुड़ता है और इसको स्टोरेज जो है वो हमारा प्रोटीन का सप्लाई कर देता है। तो इसी को समझते हैं। गोल्गी आर क्लोजली रिलेटेड टू अवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा गोल्गी बॉडी जो है वो हमेशा, अगर आप स्ट्रक्चर या डायग्राम देखेंगे तो गोल्गी बॉडी हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही बनाया जाता है। तो इट हैज़ मेम्ब्रेनस सिमिलर टू दोज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनका मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होता है, दो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। It usually composed of 4 or more stacked layer of thin flat enclosed vesicle। तो ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनमें वेसाइकल्स होते हैं और ये न्यूक्लियस की कोई भी एक साइड रहते हैं प्रोमिनेंटली। दस दिस अपैरेटस इज प्रोमिनेंट इन सिक्रीटरी सेल। जो भी हमारे सिक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे लाइक पेनक्रियाज, तो उनके सेल्स में या इंटेस्टाइन के सेल्स में जहाँ भी सिक्रीशन होता होगा वहाँ पे ये अपैरेटस जो है वो ज़्यादा होते हैं और ये साइड ऑफ द सेल के में होंगे ताकि इनको ये एक्सक्रूड करके यानी कि एक प्रोट्रूशन बना के अपना सिक्रीशन जो है वो सप्लाई कर सके सेल को, इसलिए इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। देन द गोल्गी अपैरेटस फंक्शन इन एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल के काम करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसाइकल भी कहते हैं, जो कि धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कुछ दूर जा करके यानी कि ये वेसाइकल्स बना करके वो गोल्गी अपैरेटस से फ्यूज़ हो जाता है ताकि वो जो सब्सटेंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके और ये ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस जो है वो फर्दर गोल्गी में प्रोसेस किया जा सके और गोल्गी से फिर फर्दर हमारे लाइजोसोम्स, सिक्रीटरी वेसाइकल्स और अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स को जो है वो बनाया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ये कैरियर का काम करें यानी कि वेसाइकल्स बन के गोल्गी के पास जाएंगे कि लो हमारा प्रोडक्ट तैयार है। अब गोल्गी जो है फर्दर इससे लाइजोसोम, सिक्रीटरी वेसिकल्स और साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स को बनाएगा। तो ये था गोल्गी का फंक्शन और स्ट्रक्चर। देन वी हैव लाइजोसोम जो कि गोल्गी से ही बन रहा है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी के फंक्शन से बन रहा है। तो वेसिकुलर ऑर्गेनल्स दैट फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ द गोल्गी अपैरेटस एंड देन डिस्पर्सिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो गोल्गी अपैरेटस जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये धीरे धीरे डिस्पर्स हो रहा है। तो अब ये जब कम्प्लीटली डिस्पर्स हो जाएगा गोल्गी अपैरेटस से तो ये वेसिकुलर ऑर्गेनल जो है वो लाइजोसोम बना लेगा।
अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव एंजाइम का काम करेगा और सेल में डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को ये कंप्लीट करेगा। जैसे कि हम खुद जानते हैं कि लाइसोसोम हमारे सेल का सुसाइडल बैग है। जो भी चीज़ें बुरी होती है, जिसको भी एलिमिनेट करना होता है, लाइसोसोम जाता है, उसे एनगल्फ करता है और अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, ताकि वो सब्सटेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाए। और क्योंकि लाइसोसोम तो कंटिन्यूसली हमारे सेल्स में बनते रहेंगे, इसलिए तो मेन फंक्शन जो है वो क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो भी डैमेजिंग सब्सटेंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सेल के, उनको ये डाइजेस्ट कर लेगा। फूड पार्टिकल्स दैट हैव नॉट बीन इंजेस्टेड बाय द सेल, ऐसे फूड पार्टिकल जो कि सेल ने इंजेस्ट नहीं किए, जो इन्वेड कर गए हैं या पैथोजन बोलना चाहिए, उनको भी ये किल कर देता है, उनको डाइजेस्ट करता है। देन अनवांटेड मैटर सच एज बैक्टीरिया, अनवांटेड मैटर, अगर जैसे कि अनवांटेड कोई भी सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर आ जाएगा तो उसको फर्दर जो है लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है। देन द लाइसोसोम इज़ क्वाइट डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बट इज़ यूजुअली 250 to 750 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंट तरह के लाइसोसोम्स होते हैं बेस्ड ऑन वहाँ पे क्या ज़रूरत है हमारे सेल को, उसके अकॉर्डिंग। बट इनका जो डायमीटर है वो रेंज करेगा हमारे 250 से 750 नैनोमीटर के अंदर अंदर तक। और ये भी जो है लिपिड बायलेयर से सराउंडेड एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये गोल्गी से बने हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंट्रीब्यूशन से बने हैं, जो कि दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये भी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और जो कि फिल्ड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स, जो कि 5 to 8 नैनोमीटर के होते हैं, विच आर प्रोटीन एग्रीगेट्स एंड एज मेनी एज 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइज और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे होते हैं। तो हमारे जो लाइसोसोम्स है वो यानी कि लिपिड बायलेयर से कवर्ड होते हैं और इनमें प्रोटीन के कुछ बंचेस होते हैं, या बोलना चाहिए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जो कि 40 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइजेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं और लाइसोसोम के फंक्शनिंग को एफिशिएंट बनाते हैं। तो अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ स्प्लिटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 2 or more पार्ट्स बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल with one part of the compound and combining hydroxyl, the remaining portion of the water molecule, with the other part of the compound। यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, एक हिस्से में ये हाइड्रोक्सिल पोर्शन को लगाते हैं और एक हिस्से में वाटर पोर्शन को ये लगा देते हैं और उनको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो प्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइज होता है अमीनो एसिड में, यानी कि टूटता है, और सिंपलर फॉर्म में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, लिपिड फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यही सेम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम होता है जो कि हमारा लाइसोसोम करता है। Ordinarily, the membrane surrounding the lysosome prevents the enclosed hydrolytic enzyme from coming in contact with other substances in the cell and therefore prevent the digestive actions। तो unnecessarily ये लाइसोसोम भी जो है उनके हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो एक्शन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे बचाया जाता है कि उनको सराउंड कर दिया जाता है। तो ये जो सराउंडिंग बायलिपिड लेयर है या बायलेयर है लिपिड की, ये वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सेल के हेल्दी ऑर्गेनल्स या साइटोप्लाज्म में कांटेक्ट नहीं होने देती है, इसको प्रिजर्व करके रखती है। इसीलिए जो भी चीज़ें फॉरेन या अनवांटेड होती है उसको लाइसोसोम एनगल्फ करता है, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो जो भी काम होगा वो लाइसोसोम के अंदर होगा, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये खुद जो हार्मफुल चीज़ें उनको एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। Next, however, some conditions of the cell break the membrane of some of the lysosome, allowing the release of digestive enzyme. These enzymes then split the organic substances and make them into simpler components, such as we have seen in the example, protein into amino acid, glycogen into glucose, or lipid into fatty acid and glycerols. Then the next important structure or the functional unit of cell is our peroxisomes. So peroxisomes are
Physically similar means based on structure they are similar to lysosome, but they are different in two important ways, or based on their functioning. So the first important function of peroxisome is self replication, as they are believed to be formed by self replication or budding from endoplasmic reticulum. So budding from Golgi apparatus is our lysosome, and budding from endoplasmic reticulum is our peroxisomes rather than Golgi. Then we have a second important thing which makes these two different, means peroxisome different from lysosome, is our peroxisome contains oxidases rather than hydrolases. Hydrolases वो होते हैं जो चीज़ों को स्प्लिट करेंगे, ऑक्सीडेजेस वो होंगे जो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन को कंबाइन करेंगे, यानी कि दे आर केपेबल ऑफ कंबाइनिंग ऑक्सीजन with hydrogen ion derived from different intracellular chemicals so that they can form hydrogen peroxide. यानी कि बेसिकली ये एक एसोसिएटिव एजेंट का काम करेंगे कि ये दो जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं हमारे बॉडी या सेल में, उनको ये अटैच करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे. So hydrogen peroxide is highly oxidizing substance which is used in association with catalase, another oxidase enzyme present in a large quantity in a peroxisome. तो peroxisome और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों ही जो है अच्छी खासी मात्रा में हमारे पेरोक्सिसोम में होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट भी देता है हमारे सेल्स के अंदर रह के. और अदरवाइज ये जो कंपोनेंट्स हैं जो फ्रीली घूम रहे हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन के हमारे सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि डैमेज कर सकते हैं. तो अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द हमारे डिसीज़ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक मेजर कारण होता है सेल डैमेज या डिसीज़ डेवलपमेंट का. तो ये पेरोक्सिसोम जो कि ऑक्सीडेजेस कंटेन करते हैं, जो कि उन फ्री रेडिकल्स को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और कैटालेस की मदद से उनसे फाइट करने में मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, about half the alcohol a person drink is detoxified by peroxisome of the liver cells in this manner. यानी कि जो इंसान शराब पीता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका जो लीवर है वो आधे से ज़्यादा यानी कि 50% लीवर जो है वो सिर्फ पेरोक्सिसोम से डिटॉक्सिफाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के और कैटालेस की मदद से. देन द अनदर important structure we have is secretory vesicles, जो कि important function play करता है हमारे cells के secretions में, यानी कि chemical substance के release में. तो हमारा almost जो सारे secretory substance हैं वो हमारे endoplasmic reticulum में बनते हैं और गोल्गी में जाते हैं, और गोल्गी से फिर रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, चाहे वो स्टोरेज वेसाइकल के फॉर्म्स में हो, चाहे वो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स या वेसाइकल्स के फॉर्म में हो. तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है कि सेक्रेटरी वेसाइकल्स जो हैं ये पैनक्रियास के एसएनआर सेल्स में देखे जा रहे हैं. अगर आप देख पा रहे हैं डायग्राम, तो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं यानी कि सर्कल्स हैं, ये कुछ नहीं, ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स हैं जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी से फर्दर डिराइव हुए हैं, जिनमें कुछ सिक्रीशंस हैं. तो पर्टिकुलरली सिक्रीशन जो होते हैं वो प्रोटीन प्रो एंजाइम्स होते हैं. प्रो एंजाइम्स यानी ऐसे प्रोटीन बेस्ड एंजाइम जो कि अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, जिनको फर्दर जब समय आने पे एक्टिवेशन जिनका किया जाएगा कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में और किसी पर्टिकुलर एंजाइम या कैटालेस के प्रेजेंस में. For example, the proenzyme are secreted later through the outer cell membrane of the into the pancreatic duct. तो जो भी pancreatic secretions होते हैं वो यही proenzyme को रिलीज़ करते हैं हमारे ड्यूडेनम में. फर्दर ड्यूडेनम में इंटेस्टिनल और जो हमारा काइम आता है यानी कि फूड आता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको एक्टिवेट करती है यानी कि प्रॉपर एंजाइम में कन्वर्ट करती है, और ये फर्दर जो है फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं. And last but not the least, powerhouse of the cell, that is our mitochondria. Without them, cells would not able to extract enough energy from the nutrients, and essentially all cellular function would be
सीज्ड, यानी कि जो भी हमारे सेल्स में एनर्जी का काम हो रहा है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिस भी तरह का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी बेसिस पे ही हो रहा है, या जो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बायो एनर्जेटिक्स, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एनर्जी, उनको रेगुलेट करता है और जिस भी तरीके से वो फंक्शनिंग करता है, वो सब कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स और सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। तो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया है जो दो लिपिड बायलेयर से बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है इस जगह पे। तो दो लिपिड बायलेयर से ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। अब मेनी इनफोल्डिंग्स इन द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म शेल्स ऑनटू विच ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर अटैच। तो हमारे ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये काफ़ी फोल्ड्स में बने हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये फोल्ड्स हुए हैं। अब ये फोल्ड्स में जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो हैं वो अटैच्ड है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंजाइम्स हियर इन द रेड डॉट्स एज यू कैन सी। तो ये क्या करते हैं, इनर एक्टिविटी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया की है उनको रेगुलेट करेंगे। इन एडिशन द इनर कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। अब जो अंदर ये कैविटी है हमारे इनर मेम्ब्रेन की, या जो फोल्ड्स हैं, उनमें क्या भरा है, मैट्रिक्स भरा है, यानी कि लिक्विड भरा है, जिसमें कि क्या है, इस मैट्रिक्स में और दिस मैट्रिक कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिजॉल्व्ड एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। ऐसे एंजाइम जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी को डिराइव करेंगे। और फर्दर ये एंजाइम हमारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम के साथ काम करेंगे और ऑक्सीडेशन करेंगे उन न्यूट्रिएंट्स का। अब जब न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि कंजम्पशन करेंगे, तो हमारा बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और फर्दर हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी जो है वो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया से डिफ्यूजन के थ्रू सेल में भेज दिया जाएगा फर्दर सेलुलर फंक्शनिंग के लिए, या जो भी रिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग हमको चाहिए जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी को जो है सेल के न्यूक्लियस को दे देगा। So guys, I hope you like this video and this video is useful for you. So from the next class we will continue to nucleus, as we have already discussed endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosome and peroxisome, which are part of our cytoplasm and its organelles. We have already completed, and as we have seen here that our cell is mainly constituted or made up of two things, that is nucleus and cytoplasm. So the cytoplasm is completed in this unit. For nucleus, as is quite deep in detail, or nucleus has a lot of function to do in a cell, so we will discuss nucleus in the next part. Hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel, and thanks for watching.